Hello, my dear students. We'll discuss today the lecture 4 of the chapter Force and Laws of Motion. And in this lecture, we'll discuss the Newton's third law of motion, a very famous law, the action and reaction law. In the previous classes, we had discussed up to the Newton's second law of motion, and we'll discuss today the action and reaction law. So we were on the topic Newton's laws of motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ मोशन, थर्ड लॉ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया है, और इनर्शिया के अंदर a body doesn't want any change. If the body is in rest, it want to remain in rest. If a body is in motion, it want to remain in motion. If a body is going in a particular direction, it want to remain in that direction. Like this picture, this animation shows this explain the inertia. Newton's second law of motion, it is the law of momentum, and these animations shows the Newton's second law of motion that we have discussed in the previous classes. And we will discuss today the Newton's third law of motion. This is the action and reaction law, and these pictures, they shows the action and reaction law. This is the statement for Newton's third law of motion. To every action there is always an equal and opposite force known as reaction. अगर मेरे हाथ से मैं बोर्ड में एक पंच मारता हूं, ये मेरा एक्शन है. हाथ से मैं तुम्हारे नाक पे एक पंच मारता हूं, ये मेरा एक्शन है. लेकिन मेरे हाथ में भी लगेगी, तुम्हारे फेस से, तुम्हारे नाक से मेरे हाथ में लगेगी, वो रिएक्शन है. सो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नोन एज रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. जितना मेरा एक्शन होगा उतना मेरा रिएक्शन होगा. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. मेरे हाथ से मैंने आपके फेस पे पंच मारा, मुंह पे पंच मारा, ये एक्शन है. तो मेरा एक्शन आपके मुंह पे लगा, और आपके मुंह से, आपके फेस से मेरे हाथ पे जो लगा वो रिएक्शन है. तो एक्शन ऑन योर फेस, रिएक्शन ऑन माई हैंड. सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. These are some applications to explain the Newton's third law of motion. When a gun is fired, the bullet moves in forward direction. ये action है. And the gun recoils in backward direction. वो reaction है. For example, I have this bullet. ये मेरे पास bullet है. When a bullet is fired, था, तो बुलेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एक्शन बाय द गन ऑन द बुलेट, एंड द गन रिकॉइल्स. देयर इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन. जो बुलेट है गन के ऊपर पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसे कहेंगे रिएक्शन. बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स द गन रिकॉइल्स. सो विल शो इट बाय सम पिक्चर्स. This is the gun before firing. The gun is loaded with the bullet, and this is after fire. When the bullet is fired, ये gun यहाँ पर थी, bullet आगे गया, action, gun पीछे गई, reaction. This animation shows clearly कि bullet आगे की ओर जाता है और gun पीछे रिकॉयल हो रही है. ये पिक्चर शो कर रही है. मैं एक बार फिर रिपीट करके दिखाता हूं आपको. सो द बुलेट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन. और जो बुलेट बाहर निकलता है वो गन के ऊपर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस गन रिकॉइल्स.
सो बुलेट के ऊपर है फोर्स ऑन बुलेट, दिस इज एक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. गन रिकॉइल्स, इट इज द रिएक्शन फोर्स. Now, when a rubber ball is struck against a wall or a floor, it exerts a force on the wall, this is the action, and the ball rebounces due to equal force, that is what? Reaction. कि जैसे ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो बॉल ग्राउंड के ऊपर लगाती है एक्शन, और ग्राउंड उसको ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, दिस इज व्हाट? Reaction. And because of this reaction, action and reaction, this ball rebounces. While walking, a person presses the ground in the backward direction, this is action, and the ground pushes the person in the forward direction with the equal force, and this is what? Reaction. हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं, तो ये हमारे फीट का ग्राउंड पे हुआ एक्शन, ग्राउंड हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देता है रिएक्शन, जिसके कारण हम आगे की ओर चलते हैं. दिस इट इज शोन बाय दिस पिक्चर कि ग्राउंड को हम पुश कर रहे हैं, ये एक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड हमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्शन है. We'll take some more illustrations. Illustrations means some or more expressions, explanations जो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन के बारे में और अच्छे से क्लियर कर देंगे. Why do you feel hurt in your hammer a nail into a wood plank? आप देखें, ये बंदा है इस लकड़ी के अंदर कील को ठोक रहा है, तो कील को ठोक रहा है तो क्या हो रहा है? उसकी हथौड़ी इधर जा रही है. क्यों जा रही है? क्यों डिसबैलेंस हो रही है? कि वो कील के ऊपर लगा रहा है फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है हथौड़ी के ऊपर, तो इसलिए उसका वो बैलेंस बिगड़ रहा है, साइड में हट रहा है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ. हाउ डू वी स्विम? बड़े आराम से आप समझ सकते हैं. हम पानी को पीछे की ओर पुश करते हैं, तो पानी के ऊपर हमने लगाया एक्शन, जैसे ये लगा रहा है, और पानी हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन देता है रिएक्शन फोर्स, जिसके कारण हम स्विम करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं. When a person jumps out of a boat, he pushes the boat in the backward direction, this is action. According to Newton's third law of motion, the boat exerts an equal and opposite force known as reaction on the person in the forward direction. When we jump out of the boat, तो बोट के ऊपर हम जैसे नदी के किनारे आ गए हैं या समुद्र के किनारे आ गए हैं, वी आर इन द बोट. बोट के ऊपर हम पाँव से, हमारे फीट से जो फोर्स लगाते हैं, दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन. Because of the action, the boat goes in backward direction into the river, and we come on the seashore or on the bank of the river. That is because of the reaction force provided by the boat. This explains. The person is jumping from the boat. बोट के ऊपर फोर्स लगा रहा है एक्शन, जिसके कारण बोट पीछे पानी में जा रही है. And this banda is coming on the bank of the river because of the reaction force. Reaction force is provided by the boat. Action force on the boat is provided by the man. A boatman pushes the river bank with a bamboo pole to take his boat into the river. And generally जो लोग पानी के अंदर फिश वगैरह पकड़ने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जैसे छोटी बोट वगैरह होती है, वो क्या करते हैं कि लकड़ी के लट से वो नदी के किनारे को पुश करते हैं. पुश किया तो उन्होंने लकड़ी के लट से नदी के किनारे पे जो फोर्स लगाया वो है एक्शन, और नदी का किनारा उस लकड़ी के लट पे या वुडन प्लैंक पे फोर्स लगाता है रिएक्शन. बिकॉज ऑफ दैट द बोट गोज इनटू द वाटर. दिस पिक्चर शोज the boatman pushes the bank of the river
with this wooden plank. So there is the force of action by the wooden plank on the bank of the river, and the bank of the river provides the equal and opposite force, that is reaction, and because of reaction force the boatman or the boat goes into the water. Motion of rockets and jet aeroplanes. ये देखिए रॉकेट है and this rocket is filled with the fuel. रॉकेट का जो वजन है उस वजन वो है वेट, वेट है नीचे की ओर लगता है, तो दिस वेट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया है एक्शन, दिस इज व्हाट एक्शन। और जब इसको रॉकेट को फायर करते हैं, this fuel burns and it produces the large volume of gases in the downward direction, and these gases provides the equal and opposite force known as reaction, and because of that the rocket moves in upward direction. The fuel that is burning in the rocket, it puts the force on the ground in the downward direction, this is what action, and the ground provides the equal and opposite force, that is known as reaction, in the upward direction. Why a fireman struggles to hold a hose pipe? जैसे आप देखते हैं कि हम पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते हैं तो तेल भरने वाला है उसको हॉस पाइप को पकड़ के रखता है, या आग बुझाने वाले हैं तो वो क्या करते हैं उस पाइप को पकड़ के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो पीछे जाता है। तो जो हॉस पाइप से पानी निकलता है या पेट्रोल निकलता है तो वो पीछे की ओर एक रिएक्शनरी फोर्स लगाते हैं, बिकॉज ऑफ द रिएक्शनरी फोर्स द हॉस पाइप गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस बैकवर्ड डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए द फायरमैन और द पेट्रोलमैन दैट इज पुटिंग द पेट्रोल, दे हैव टू स्ट्रगल। देखो इसको एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसको पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो पाइप पीछे चला जाएगा। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं कि गर्मियों के अंदर हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे पानी का पाइप हुआ उसको गोला बना के और लॉन के अंदर पटक देते हैं सुबह शाम, क्योंकि हमें पानी देना होता है। जैसे शाम को पानी आता है, पानी का प्रेशर अच्छा है, आपने मोटर चलाई और जैसे आप टूटी को खोलोगे, टैप को खोलोगे तो उस पाइप के अंदर पानी जाएगा। जैसे पाइप के अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा, वो पाइप का जो घेरा है एकदम से बड़ा होएगा, वो पाइप खुलेगा, क्योंकि पाइप से जो पानी बाहर निकलता है वो है एक्शन, और जो पानी बाहर निकलता है वो पाइप के ऊपर फोर्स लगाता है, रिएक्शनरी फोर्स, जिसके कारण वो पाइप रिएक्शनरी फोर्स पीछे जाएगा तो कहीं ना कहीं पाइप को थोड़ा सा खोलेगा, उसका घेरा बड़ा बना देगा। So this is all about the Newton's third law of motion, and my dear students, Newton's third law of motion is nothing but ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करता है। तो हम ये कहें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ज़्यादातर इलिस्ट्रेशंस हैं उनको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास, हमारी जो कमिंग क्लास होगी उसके अंदर हमारा लेक्चर जो 5 होगा दैट विल कवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ के साथ में ही हम उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उसको लिंक कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, एकेडमी के बारे में आप जानना चाह रहे हो, दिस फ़ोन नंबर इज़ डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। आप एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू।